یہ تب کی بات ہے جب میں ایک خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا۔ ویسے تو لیکچرز وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم سبھی دوست یونیورسٹی کی زندگی کو جی بھر کر جینے کی خاطر یونیورسٹی چلے جاتے تھے۔ سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ کلاس کی لڑکیاں بھی ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے تھوڑا زیادہ ہی فری ہو گئی تھی۔ شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھی۔ میں پہاڑ کی چوٹیوں پہ واقع ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا تھا۔ اس وجہ سے مجھے قبیلے میں ایک خاص عزت کا مقام حاصل تھا۔ ہاسٹل لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا نہیں بلکہ جیا تھا۔ رات کو فالوز کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنا، تاش کی بازی لگانا، ایک دوسرے کا بستر ادھر ادھر پھینکنا، رات کو سوتے وقت کسی پر پانی پھینک کر اس کو نیند سے جگا دینا اور پھر ساری رات اس کی گالیاں سننا وغیرہ وغیرہ۔ بہت پیارا وقت تھا وہ، کاش وہ وقت کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے وقت میں کسی نسوانی پکار کے باعث چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے میرا نام لے کر پکارا گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے کلاس فیلو آبش سکندر میرے روبرو کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن میری تکرار ہوئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ چھوٹی سی بات پہ ہی ہم دونوں مرغیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے۔ وہ ایک امیر گھر کی خوبصورت اور لڑاکو طیارہ لڑکی تھی۔ کلاس کی لڑکیوں کے علاوہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی تھی۔ بات نہیں، دراصل لڑتی تھی۔ اینول ڈنر کے موقع پر نہ جانے کیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر پچھلی لڑائی جھگڑے ختم کر دیے۔ اس دن کے بعد ہم دونوں کی دوستی کلاس میں مشہور ہو گئی۔ یونیورسٹی کا ہر فرد مجھے آبش کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں شیکفا ہوتا رہتا تھا۔ شاید اس لیے کہ میں ایک دیہاتی سا سادہ سا لڑکا تھا جس کے ساتھ میں لنگور کی جگہ انگور آ گئے تھے۔ دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل کی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ جب کبھی وہ یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوتی تو اپنی غیر حاضری کے بارے میں صرف مجھے ہی بتاتی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں اس کو بتائے بغیر اس کی چھٹی کی درخواست لکھ کر جمع کروا دیتا تھا۔ یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں بتائی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے وقت جب اس نے مجھے پکارا تو میں رک گیا۔ وہ میرے سامنے آئی اور بولی، کہاں گھومتے پھر رہے ہو، وہ بھی اکیلے اکیلے؟ یونیورسٹی کا آخری ہفتہ ہے، کم سے کم یہ وقت تو میرے ساتھ گزارو۔ اس نے پیار سے دوستانہ شکایت کی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس سے کبھی میرا 70 کا اکھاڑا تھا، لیکن اب وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ 4 سال تو تمہارے ساتھ ہی گزارے ہیں میں نے، وہ کیا کم تھے جو اس آخری ہفتے کا رونا رونے بیٹھ گئی ہو؟ میں نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ کوئی بکواس بند کر اپنی، میں نے کہا نا کہ تم میرے ساتھ ہی اپنا وقت گزارو گے تو مطلب گزارو گے۔ وہ کبھی کبھی مجھے لے کر تھوڑی جذباتی ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری ماں، تم چلو میں سر سے مل کر 2 منٹ میں آیا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ کر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ سر سے مل کر میں اسے ڈھونڈنے لگا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب وہ مجھ سے غصہ ہوتی تھی تو کہاں جا کر بیٹھتی تھی۔ میں وہیں چلا گیا، وہ وہیں تھی، اکیلی گمسم پتھر کی سل پہ بیٹھی، ساتھ لگے شہتوں کے درخت سے سر کو ٹکائے گھاس پہ گرے خشک پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ میں نے سوال کیا۔ خاموشی۔ میں نے اس کو خاموش دیکھ کر پھر وہی سوال کیا۔ اس کا جواب پھر خاموشی تھا۔ کچھ تو بولو، یوں چپ مت بیٹھو۔ میں نے پیار سے اس کو منانے کی خاطر التجا کی۔ وہ پھر بھی خاموش بیٹھی رہی، جانے خشک پتوں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ بہت اجڑی اجڑی سی لگ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت دکھی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی مگر اس کا جواب وہی خاموشی ملا۔ میں بیزار ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ 4 سالوں میں پہلی بار اس نے مجھے چھوا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھ کو چھوا اور مجھے میری ہی نظروں میں معتبر کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں آ رہا تھا، اس لیے یہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا۔ کس نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی؟ وہ سنجیدگی سے مجھ پر اپنا حق جتائے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ وقت نے۔ میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وقت کون ہوتا ہے ہم دونوں کا فیصلہ کرنے والا؟ وہ ایک دم سی شید میں آ گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑا اس کو سنتا رہا۔
फिर उसने एक लंबी सी ठंडी सांस छोड़ी और बोली, चलो आज मुझे कहीं घुमाने ले चलो। घुमाने, वो भी मैं? मेरे पास तो कोई सवारी भी नहीं है। मुझे नहीं पता, बस मुझे कहीं घुमाने ले चलो। ये वक्त शायद फिर कभी ना आए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक बार कहीं घूमने जाना चाहती हूँ। उसने मुझे देखकर अपना हतमी फ़ैसला सुना दिया था। उसको इनकार करना मतलब उसकी नाराज़गी मोल लेना था। वो नाराज़ होकर बहुत जालिम लड़की बन जाती थी और मैं उन आखिरी लम्हों में उसको नाराज़ नहीं करना चाहता था। चलो उठो, घूमने चलें। मैंने उसको देखकर कहा, कहाँ जाएंगे हम? जहाँ भी रब ले जाए। वो हल्का सा मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। हम दोनों यूनिवर्सिटी से निकलकर बाहर रोड पर आ गए। उस दौर में मुझ जैसे गरीबों के लिए सिर्फ टांगे की सवारी हुआ करती थी। ये अलग बात थी कि आबिश एक बड़ी सी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी आती थी। टांगे की सवारी उसकी शान के खिलाफ थी और मेरे औकात के मुताबिक थी। मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें कार में बिठाना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए टांगे पर ही तुमको सब्र के साथ और खुशी खुशी बैठना होगा। वो मुस्कुरा दी। मैं जानता था कि वो मेरे साथ पैदल भी सफ़र करने के लिए राज़ी थी। टांगे पर बैठकर हम जाड़े के मौसम में हल्की धूप में शहर के बाज़ार में आ गए। मैं उसे चाचे गामे के ठेरे पर ले गया। चाचा गामा कोए वाली कुल्फ़ियाँ फ़रोख्त करता था। मैंने वहाँ से 2 कोए वाली कुल्फ़ियाँ ख़रीदी और एक आबिश को दे दी और एक खुद खाने लगा। 4 आने से 2 कुल्फ़ियाँ ख़रीदना उस वक़्त बहुत अय्याशी तस्वर किया जाता था। उसने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं खाई थी। कुल्फ़ी खाते वक्त कुल्फ़ी से बहता कोया उसके होंठों से नीचे टपक रहा था। कोए के कुछ कतरे उसकी नाक पर भी लगे हुए थे। उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगा। वो समझ गई कि मैं किस वजह से हंस रहा था। अगले ही पल उसने अपनी कुल्फ़ी मेरे नाक और मुंह मल दी और मेरे हाथों से मेरी कुल्फ़ी छीन कर खाने लगी। उसके चेहरे पर उस वक़्त जो मुस्कान थी वो काबिले दीद थी। उस वक़्त एक ही पल में वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। दिल चाह रहा था कि वो ऐसी सारी ज़िंदगी खड़ी रहे मेरे सामने और मैं उसे यूं ही मुस्कुराते हुए देखता रहूं। वो पहला और आखिरी मौका था जब आबिश मेरे साथ बाहर कहीं गई थी। हमारे लिए वो चंद लम्हे सैर व सियाहत की तरह थे। आज के दौर के बच्चे इस सैर को डेट पे जाना कहते हैं। जिस दिन हमारा यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था, उस दिन आबिश बहुत कमज़ोर दिख रही थी। मैं अपना सामान बैग में समेट कर यूनिवर्सिटी ले आया था और उसे बाहरी चाय के ढाबे पर रख दिया था ताकि यहाँ से जब फारग हुआ तो सामान यहीं से उठाकर अपने घर को लौट जाऊँगा। उस दिन तमाम उस्ताद ने हमारे साथ तस्वीरें भी बनवाई। ये अलग बात है कि वो तस्वीरें कभी मुझ तक नहीं पहुंची। तमाम क्लास फेलो से आखिरी बार ढेर सारी बातें की। उस दिन ज़िंदगी में पहली बार वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया। उस्ताद से और क्लास फेलो से बातें करके जी ही नहीं भर रहा था, मगर उस दिन वक्त हमारे हक़ में नहीं था। फिर मैं आबिश से मिला। वो गमगीन हो गई थी। मैं भी अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके खड़ा था। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। मैं उसे जी भर कर देख रहा था। उससे दूर जाना पुल सराज से गुजरने की तरह महसूस हो रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से एक सिल्वर रंग की अंगूठी उतारकर मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहना दी। मेरी छोटी उंगली उसके लेडी फिंगर से बड़ी थी, इसलिए वो अंगूठी मेरी आधी उंगली में ही समा सकी। मैंने अपने गले में पहनी हुई चेन उतारकर पागलों की तरह उसके गले के बजाय उसके कलाई पे बल देकर बांध दी। ये सब कुछ एक होलनाक खामोशी की ज़ेर असर हो रहा था। वो भी चुप थी, मैं भी चुप था। उसकी आंखें अभी सुर्ख हो गई थी, मेरी पेशानी भी जलने लगी थी। फिर वो एक नज़र मुझे देखकर हज़ार ज़ब्त के बावजूद 2 आंसू जल्दी से बहाकर बगैर कुछ कहे, बगैर अलविदा किए वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं हैरत से उसे देख रहा था। उसकी गाड़ी मेरी आंखों के सामने वहाँ से उसे लेकर चली गई और मैं वहीं हैरत का मजसमा बने उसकी गाड़ी को खुद से दूर जाता देखता रहा। मैंने सोचा था वो इस आखिरी दिन मुझसे ढेरों बातें करेगी, हर हफ्ते बाद या कम से कम 1 महीने बाद खत लिखने का वादा ज़रूर लेगी, और इस आखिरी दिन वो मुझसे मसनूई झगड़ा करके मुझे हमारी पहली मुलाकात की ज़रूर याद दिलाएगी। मगर उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं किया था। जाने उसके जहन में क्या चल रहा था। मैंने आखिरी बार अपनी यूनिवर्सिटी के गेट को देखा, दिल मुट्ठी में आ गया था। मैंने यूनिवर्सिटी को अलविदा कहा और अपना सामान उठाकर टांगे पे रखा और अपने घर की राह ली। रेल के डब्बे में बैठा मैं अपनी यूनिवर्सिटी और अपने सभी दोस्तों से बहुत दूर जा रहा था। खुशियों और लापरवाही का दौर अपने इख्तिताम को पहुंच गया था।
घर आकर अपनों से इतनी लंबे अरसे बाद मिलकर भी खुशी नहीं हो रही थी। न जाने क्यों कुछ अरसे बाद घर वालों ने शादी का कहा तो मैंने इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह मुझे खुद मालूम नहीं थी, लेकिन फिर कुछ अरसा और गुजरा तो अब्बा ने रवायती वालिद की तरह अपनी पगड़ी मेरे कदमों में डाल दी और बोले कि बेटा, तुम्हें मेरी इज्जत का वास्ता है, शादी कर लो। बस फिर मुझ जैसे देसी बंदे को अपने बाप की इज्जत की लाज रखना पड़ी और कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी मैं आबिश को भुला नहीं पाया। उसकी दी हुई अंगूठी मेरी उंगली में थी। अंगूठी तंग होने की वजह से मेरी उंगली पर उस अंगूठी के गहरे निशान बन गए थे। वो निशान मुझे आबिश की याद दिलाते थे। जब भी उसकी याद आती मैं घर से बाहर निकलकर पहाड़ों की ऊंचाई पर चला जाता। वहां जाकर मैं बेखुद सा होकर ज़ोर ज़ोर से आबिश आबिश पुकारने लगता। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा क्यों करता था। ये भी नहीं जानता था कि वो भी मुझे याद करती होगी या नहीं। ज़िंदगी किसी बोरिंग रेलवे स्टेशन की तरह होती है। न चाहते हुए भी हमें किसी बोरिंग स्टेशन पर उतरना पड़ता है, फिर वहीं से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना होता है। मैं भी एक बोरिंग स्टेशन पर उतरकर अपनी नाचाही मंजिल को पा चुका था। इस स्टेशन पर बहुत से लोग मुझसे बिछड़कर अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा चुके थे। वो भी इस स्टेशन पर उतरकर मुझसे जुदा हो गई थी। यकीनन उसको भी इसकी मंजिल मिल गई होगी। वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह सरपट दौड़ता रहा। इस सारे अरसे में बहुत कुछ बदल गया था। मैं 2 बच्चों का बाप बन गया था। एक बेटा था जिसका नाम अयान अली था और एक बेटी जिसका नाम आबिश था। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बेटी को उसका नाम दूंगा, उसे किसी भी सूरत अपने करीब रखूंगा, हर रोज़ उसको देखूंगा, प्यार करूंगा, ढेर सारी बातें करूंगा। शायद ऐसा करने से मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके। एक सर्दियों की जाड़ी वाली शाम में लाहौर की मार्केट में किसी काम से गया था, जब मुझे अपने सामने एक खातून बहुत देर से मुझे तकती नज़र आई। उसके चेहरे पर नकाब था मगर उसकी आंखें जानी पहचानी थी। एकदम से मेरे जहन में धमाका सा हुआ। आबिश, मैंने दिल ही दिल में कहा था। दफ्ता ही उस खातून ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसका ऐसा करना था कि मेरा दिल मिट्टी में आ गया। वो वही थी आबिश, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, मेरी बेचैनी की इकलौती वजह। मैं हैरत से उसको देखे जा रहा था। वो चलती हुई मेरे सामने आ गई। वो भी मुझे बड़ी हसरत पे नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखें वही कुछ बयान कर रही थी जो वो उस आखिरी दिन नहीं कह पाई थी। कैसे हो आलिफ? उसकी आवाज़ एक लंबे अरसे बाद सुनते ही दिल को सुकून मिल गया था। मैंने एक पल के लिए सुकून से आंखें बंद कर ली और उसकी कोयल जैसी आवाज़ को अपने दिल में कैद करने लगा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? बस एक काम के सिलसिले में अपने मादर इल्म शहर आना पड़ा। बस वापस जाने वाला था कि तुम नज़र आ गई। शादी कर ली? उसने अचानक से सवाल किया। मैंने दिल पे पत्थर रखते हुए सर को इस बात में हिलाकर जवाब दिया। एकदम से उसके चेहरे पर उसकी जाड़ी के शाम जैसा मंजर बन गया, जैसा मंजर उस आखिरी मुलाकात के मौके पर बना था। कितने बच्चे पैदा कर लिए? उसने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की नाकाम कोशिश करते हुए हल्के से मुस्कुरा कर पूछा। एक बेटा और एक बेटी। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? न जाने वो क्या पूछने की सही कर रही थी। बेटे का नाम अयान अली, बेटी का नाम बताते हुए शर्म आती है। उसने हंसते हुए कहा था। आबिश, हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। उसने समझा था कि मैं उससे मुखातिब हूँ। मेरी बेटी का नाम आबिश है। मैंने गहरी नज़रों से आबिश को देखा, जिसकी हंसी एकदम सी रुक गई थी और वो बहुत ज़्यादा हैरत और संजीदगी में मुब्तला हो गई थी। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुझे प्यार भरी नज़रों से देखती रही। चलो आओ, मैं तुम्हें एक जगह पर ले चलती हूँ। उसने मेरा हाथ थामना चाहा मगर फिर एक पल में रुक गई। मेरी तरफ अपने बढ़ते हाथों को उसने पीछे हटा लिया। वो मुझे टांगे पर बिठाकर एक यादों भरी जगह पर ले आई। मैं सोच रहा था कि वो कितनी बदल गई थी। कार में बैठने वाली लड़की टांगे पे कैसे सुकून से बैठी थी। वो मुझे चाचे गामे के ठहरे पर ले आई। चाचा गामा भी बूढ़ा हो चुका था। आबिश को देखकर चाचे गामे ने उससे जल्दी में सवाल किया। आबिश पुत्र, आज खैर तसी देर क्यों कर दिती आवन इच?
चाचे गामे के सवाल से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आबिश वहाँ रोज़ ही आती थी। तभी तो चाचा गामा उससे इस बारे में पूछ रहा था। बस चाचा बाजार गई सी उतनी ही देर हो गई। मैं हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की को देख रहा था जिसको पंजाबी का एक लफ्ज़ नहीं आता था और उसे पंजाबी से चिढ़ थी, मगर आज वो बहुत अच्छी पंजाबी बोल रही थी। फिर आबिश ने अपने पर्स से 4 आने निकाल कर चाचे को दिए। चाचे ने उसे 2 कोए वाली कुल्फियाँ दी और बोले, पुत्तर कदे तो 2 नाल कुल्फियाँ खा लिया कर, बस एक ही खांदी हैं, दूजी नू बस तकदी रहंदी हैं। चाचे की बात ने मेरे दिल पे ज़रब सी लगाई थी। वो क्या थी और क्या बन गई थी। चाचे को आबिश बहुत पसंद थी, इसलिए वो इस दौर में जब 10 रुपए में भी एक कुल्फ़ी नहीं मिलती थी, वो 4 आने में 2 कुल्फ़ियाँ उसे देते थे। जाने आबिश ने चाचे से उस 4 आने के बारे में क्या बता रखा था। आबिश ने एक कुल्फ़ी खुद ले ली और दूसरी कुल्फ़ी मेरे तरफ बढ़ा दी। मैंने आबिश को देखा जो बड़ी चाव से कुल्फ़ी खाते हुए मुझे देख रही थी। उस दिन उसने सारी कुल्फ़ी बगैर नाक और मुंह गंदे किए खाई थी, जबकि उसे देखते देखते मेरे हाथों में पकड़ी कुल्फ़ी पिघल कर मेरे हाथों को गंदा कर गई थी। मैंने देखा उसकी कलाई में मेरी दी हुई चेन वैसे ही वैसी बंधी हुई थी। तुम्हारे बच्चों का क्या नाम है? मैंने यूं ही पूछ लिया। उसने मेरी तरफ ज़रा ठहर कर देखा, फिर मेरे चेहरे पर नज़रें टिका कर बोली, बच्चों के नाम तब रखे जाते हैं जब बच्चे हों, और बच्चे तब होते हैं जब शादी हो। हाँ, अगर मैं शादी करती और मेरे बच्चे होते तो मैं अपने बेटे का नाम आलिफ रखती। उसने खुद पर न जाने कैसे ज़ब्त कर रखा था, जबकि मेरा ज़ब्त जवाब देता जा रहा था। फिर मैं उससे कोई सवाल ना कर सका क्योंकि उसका हर जवाब मुझे ज़िंदा दरगो कर देता। मैंने अपनी उंगली से उसकी दी हुई अंगूठी उतार कर उसकी उंगली में पहना दी और बगैर कुछ कहे वहाँ से अपने देश लौट आया। ना ही मैंने कुछ कहा था और ना ही उसने मुझे रोका था। रेल के डब्बे में बैठे हुए सारे रास्ते मेरे आँखों से आंसू बहते रहे। सालों गुजर गए, मेरी उंगली पे उसकी अंगूठी से बनने वाले निशान आज भी मौजूद हैं। उस निशान वाली जगह को दायरे की शक्ल में सुई से खुरचता रहता हूँ, जिससे वो ज़ख्म बन जाता है और वो ज़ख्म मुझे आबिश की याद दिलाता है। आज इस बात को आधी सदी गुजर गई है, मेरी उंगली पर वो निशान आज भी बाकी है। इस दिन के बाद मैं उससे कभी नहीं मिला, ना ही उस शहर फिर कभी लौट कर गया, मगर वो कुएं वाली कुल्फ़ी का स्वाद आज भी मेरी ज़बान पे महसूस होता है। उसकी हंसी आज भी अपने करीब महसूस होती है। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना।